So hello guys and welcome to the channel. Standard ninth acids, bases and salts. Topics we'll be covering is classification of acids and bases, basicity and acidity, concentration and pH, and universal indicators. In short, classification of acids and bases is nothing but how you classify an acid and a base, how you classify an acid as a strong acid or weak acid, or a strong base and a weak base. Acids and bases are classified into strong and weak types on the basis of extent to which they dissociate in their aqueous solution. Strong acid. On dissolving in water, a strong acid dissociates almost completely and the resulting aqueous solution contains mainly H plus ions and concerned acidic radical. Strong acid Strong acids are nothing but what, when you dissolve them in an aqueous solution, mainly they give out H plus ions and the remaining acidic radical. कि मतलब जब strong acid को आप aqueous solution में dip करते हो या aqueous solution में dissolve करते हो तो वो dissociate होता है, तो ज़्यादातर ions जो निकलते हैं वो H plus ions निकलते हैं और बाकी उनका जो अलग radical रहेगा वो निकलता है. What is a weak acid? On dissolving in water, a weak acid does not dissociate completely and the resulting aqueous solution contains H plus ions and the concerned acidic radical in small proportion along with large proportion of undissociated molecules of the acid. के एग्जाम्पल है आपके H2CH3 और just one example to make you understand CH3COH, which is your acidic acid. Weak acids are nothing but those type of acids जिनको आप पानी में, जिनको आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे या डिसोशिएट करोगे तो H प्लस आयंस कम निकलेंगे और बाकी कभी कभी ऐसा होगा कि टूटा फूटा मॉलिक्यूल ज़्यादा निकलेगा. आपको H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा, H प्लस आयंस कम मिलेंगे बट दूसरे रेडिकल्स ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए उसको वीक एसिड टर्म किया जाता है. नेक्स्ट इज योर स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस. On dissolving in water, a strong base dissociates almost completely and the resulting aqueous solution contains mainly OH minus ions and concerned basic radicals. इस बेस के वक्त OH माइनस आयंस ज़्यादा होते हैं. इनका एग्जांपल है आपका NaOH एंड KOH. स्ट्रॉन्ग बेस को जब आप एक सॉल्यूशन में डिप करोगे या डिसॉल्व करोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस का OH माइनस आयंस ज़्यादा निकलेगा और बाकी का बेसिक रेडिकल कम निकलेगा. जी, इनके एग्जांपल्स आपके NaOH और KOH. Next is your weak base. Weak base में सिमिलर OH माइनस आयंस आपको कम क्वांटिटी में मिलेंगे और इनके एग्जांपल्स हैं आपके एक आपका NH4, that is your ammonia. Let me just read it out to you to understand. On dissolving in a water, a weak base does not dissociate completely and the resulting aqueous solution contains small proportion of OH minus ions and the concerned basic radical along with a large proportion of undissociated molecules of the base. For example, NH4OH. Next concept एक और है आपका alkali. Alkali, the bases which are highly soluble in water are called alkali. For example, NaOH, KOH, NH3, where here NaOH and KOH are strong alkalis while NH3 is a weak alkali. Alkalis are those particular types of substances or compounds जो बेसिक होते हैं और पानी में
डिजॉल्व पूरी तरह से हो जाते हैं. दोज आर कॉल्ड अल्कली. आपका NaOH एंड KOH इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, बट आपका NH3 इज अ वीक अल्कली. लेट्स मूव ऑन टू बेसिसिटी एंड एसिडिटी. Basicity and acidity. H plus ions dissociated by dissociation of one molecule. OH minus minus ions by dissociation of one molecule. It seems a bit confusing, but imagine अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या कंपाउंड है, जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर रहे हो या डिसॉल्व कर रहे हो, सो व्हाट हैपेंस कि वो अपने आयंस को डिसोशिएट करेगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा जब H प्लस आयंस आएंगे तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की बेसिसिटी कम होगी. अगर कम H प्लस आयंस आएंगे तो उस एलिमेंट की बेसिसिटी ज़्यादा होगी. सेम गोज़ फॉर एसिडिटी. OH माइनस कम आएगा तो एसिडिटी ज़्यादा है. OH माइनस ज़्यादा आएगा तो एसिडिटी कम है. कैसे? H प्लस आयंस ज़्यादा रहेंगे तो एसिड कंटेंट ही ज़्यादा है ना, एसिडिक रेडिकल ही ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वो बेसिसिटी कम देगा. अगर H प्लस आयंस कम है, एसिड कंटेंट कम है, तो बेसिसिटी ज़्यादा है. एसिडिटी में सेम OH माइनस आयंस. OH माइनस क्या है? बेसिक आयन. तो OH माइनस ज़्यादा रहेगा तो एसिडिटी कम रहेगी. अगर OH माइनस कम रहेगा तो एसिडिटी ज़्यादा रहेगी. ट्राई टू गेट दिस थ्रू. द नेक्स्ट टॉपिक विल बी starting with this concentration and pH. Concentration and pH are different concepts. Concentration is like a kind of thickness or the amount of ingredient or ion in that particular element or compound. Concentration के लिए आप अपनी वही जो मैंने पुराना एग्जांपल दिया था दाल का, उसको आप समझ सकते हो. जब आपकी दाल थिक होती है, जब आपकी दाल गाढ़ी होती है, तो उसका मतलब क्या है? उसमें सीरियल कंटेंट ज़्यादा है, उसमें दाल का अमाउंट ज़्यादा है. तो दाल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, दाल बहुत गाढ़ी है या थिक है. पर जब आप उसमें पानी डाल देते हो तो उसकी वजह से दाल पतली हो जाती है, दाल थोड़ी कम गाढ़ी हो जाती है, तब उसका दाल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. दैट्स द डिफरेंस और दैट्स एन एप्ट analogy for concentration. So let's start. Although the quantity of solute is same in both the solutions, the quantity of solvent is different. Ratio of quantity of solute to quantity of resulting solution is different. Okay, the ratio is larger for the solution in the first beaker and therefore the solution will taste sour. ये आपको लेमन जूस का एग्जांपल दिया गया था कि अगर आप कम पानी में लेमन जूस बनाने जाओगे, आप कम पानी में नींबू निचोड़ोगे तो आपको खट्टापन ज़्यादा आएगा, पर आप ज़्यादा पानी में नींबू निचोड़ोगे तो खट्टापन कम आएगा. दैट्स द डिफरेंस और दैट्स द काइंड ऑफ एप डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोपोर्शन. कि अगर आप खाने में खट्टा कंटेंट ज़्यादा डालोगे, नींबू है, मिर्ची नींबू है या फिर आपका इमली है, तो इसकी वजह से खाने की एसिडिटी बढ़ जाएगी, खाने का एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो खाना खट्टा रहेगा. भले ही आपको टेस्टी लगेगा पर उसमें एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट इज योर फॉर केक्स. केक्स में आप बेकिंग पाउडर यूज़ करते हो विच या फिर आप कोई और पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करते हो जो बेसिक रहती है, तो केक खट्टा नहीं लगता आपको, बट केक बहुत बेसिक होता है. केक बेसिक होने की वजह से उसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें बेसिस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है. इन शॉर्ट, अगर आपका खाना खट्टा है या तीखा है तो उसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है. वो कम है, खट्टा नहीं है, तीखा नहीं है, तो उसमें बेसिक कंटेंट ज़्यादा है. दैट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और concentration of acid and base. The taste of foodstuff depends upon the nature of the taste giving ingredient and its proportion in foodstuff. Similarly, all the properties of solution depend on the nature of the solute and solvent and also on the proportion of solute in one solution. The proportion of solute in a solution is called the concentration of solute in solution. Okay, the proportion of solute in a solution is called concentration of solute in solution. आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत अलग होता है. सॉल्यूट मतलब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो आपको डिसॉल्व करानी है. सॉल्वेंट मतलब वो सब्सटेंस जिसमें आपको डिसॉल्व कराना है वो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. शुगर
एंड वाटर। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब वो चीज़ या वो पर्टिकुलर लिक्विड जिसमें आप डिज़ोल्व करना चाहते हो। सॉल्यूट मतलब वो चीज़ जो आप डिज़ोल्व कराना चाहते हो वो। प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में आपका सॉल्यूट है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बताता है। proportion of solute is indirectly concentration of solute. When the concentration of solute in solution is high, इसका concentration जब solution में ज़्यादा होगा तब तब it is a concentrated solution, while solution is called a dilute solution when the concentration of solute is low. जब आपका पानी में शुगर ज़्यादा होगा, डेफिनेटली पानी मीठा टेस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, पानी में शुगर ज़्यादा है, मतलब पानी कॉन्सेंट्रेटेड है। जब आपका शुगर कम होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो वो उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और पानी और वो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। सेवरल यूनिट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। टू ऑफ these are used more for frequently. The first unit is the mass of solute in grams dissolved in 1 liter, that is your gram per liter. ये आपका unit of concentration है। Next is the second unit is the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. This is called molarity of the solution. The molarity of solute is indicated by writing its molecular formula inside a square bracket. That is NaCl is equal to 1, means the molarity of this common salt is 1m. Molarity. Molarity क्या होती है कि solute का measurement, that is number of moles of substance dissolved in 1 liter solution. आपके शुगर के कितने मोल्स आप 1 लीटर सॉल्यूशन में डिप कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, that is your molarity of sugar. इसमें टेबल सॉल्ट का दिया हुआ है कि टेबल सॉल्ट कितना डिप कर सकते हो। टेबल सॉल्ट आप कितना, टेबल सॉल्ट इज नथिंग बट योर NaCl। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है कि NaCl का 1 मोलार है। ये मोलारिटी का यूनिट है m। 1 मोल ऑफ टेबल सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद टेबल भी है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर pH ऑफ सॉल्यूशन। pH इज नथिंग बट अ यूनिट फॉर योर एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। pH से क्या पता चलता है, pH से आपको पता चलता है कि वो कंटेंट एसिडिक है कि बेसिक है। We have seen that acids and bases dissociate to smaller or larger extent on dissolving in water, forming H plus and OH minus ions respectively. H plus and OH minus ions are found in different proportions in all natural aqueous solutions, and that determines the properties of those solutions. For example, proportion of H plus ions and OH minus ions divides soil into acidic, neutral and basic type. It is necessary for blood, cell sap, etc. to have H plus and OH minus ions in certain definite proportions for their proper functioning. Fermentation carried out with the help of microorganisms, other biochemical processes, and also many chemical processes require proportion of H plus and OH minus to be maintained within limits. Pure water also undergoes dissociation to a very small extent and gives rise to H plus and OH minus ions in a equal proportion. Due to this property of water to undergo dissociation, there exists both H plus and OH minus in aqueous solution. However, the concentration may be different. Okay. pH मेंटेन रहना चाहिए बॉडी में या कोई भी पर्टिकुलर केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस में। What is pH? pH is number of acidity, a certain number of basicity, or is it neutral? pH स्केल आपका 1 से लेके 14 तक जाता है, मिडल में आपका 7 आता है, सॉरी आई मीन 0 से लेके 7, 7 से लेके
40, इन नंबर्स के बीच में आपका पीएच स्केल वेरी करता है. सो 0 से लेके 7 तक यू हैव एसिड एंड 7 से लेके 14 तक यू हैव बेस. 0 से लेके 7 तक कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट या कोई भी एक पर्टिकुलर केमिकल या कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वैल्यू रह गया, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिडिक. 7 से लेके 14 तक के बीच में 7 से लेके 14 तक के बीच में कोई भी एक सॉल्यूशन, कोई भी एक केमिकल या कोई भी एक एलिमेंट का वैल्यू रह गया, सो दैट इज बेसिक. 0 से लेके 2 या 3 या 4, 0 से लेके 4 के बीच में जितना वैल्यू होगा दैट इज फॉर हाईली एसिडिक सॉल्यूशन. 4 से लेके 7 या 3 से लेके 7 जितना वैल्यू होगा दैट इज फॉर वीक एसिड सॉल्यूशन. 7 से लेके 8 तक दैट इज योर वीक एसिड. 7 से लेके 9 तक दैट इज योर वीक एसिड. 10 से लेके 14 तक दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड. जितना आप 0 से दूर जाते जाओगे उतना एसिड का वैल्यू कम होएगा. जितना आप 7 से लेके 14 पे जाओगे उतना बेसिक वैल्यू बढ़ता जाएगा. राइट जाते जाओगे तो आपको बेसिसिटी या एसिडिटी कम ज़्यादा मिलती जाएगी. नेक्स्ट आपको H2O का एग्जांपल दिया गया है. H2O जब आपका डिसोसिएट होता है तो वो H प्लस और OH माइनस में डिसोशिएट होता है. कि मतलब आपका वाटर ही है जो एक एक्वा सॉल्यूशन भी है और उसमें ये दोनों कंटेंट भी है. Next is your concentration of H plus ions formed by dissociation of water at 25 degrees is 1 into 10 raised to minus 7. Concentration of H minus in 1m is 1 into 10 raised to 0. While in a 1m NaOH solution, okay, the concentration is okay. Let me just give you a perfect example. इसमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और कुछ नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना कॉन्सेंट टाइम पे होता है. आपका वाटर जब 25 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा तो इस आपका H प्लस आयंस का 1m विच इज 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 रहेगा. दूसरा समझो कोई NaOH वाला केमिकल है, NaOH वाला केमिकल रहेगा. NaOH इज योर बेसिक सॉल्यूशन. व्हाइल इन अ 1m NaOH सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज 1 in कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. आपका अभी इसमें NaOH में कहीं पे भी एसिडिक टर्म नहीं है बट H प्लस कितना रहेगा 1 इंटू 10 रेज़ टू 0 मोल पर लीटर. कि मतलब आपका NaOH में ज़्यादा एसिडिक कंटेंट नहीं है इसलिए उसका वैल्यू भी बहुत कम है. आई एम सॉरी 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 14 मतलब ना के बराबर आपका एसिड है. क्योंकि यहाँ पे पावर -14 है तो आपका आंसर तो डेफिनेटली 0.000 कुछ ना कुछ आएगा. और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादातर वेरी 10 रेज़ टू 0 से लेके 10 रेज़ टू -14 तक जाता है. जितना आपका पावर नेगेटिविटी में बढ़ता जाएगा उतना कंटेंट आपका उतना लिक्विड या उतना आपका सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है. जितना पावर कम होगा वो उतना एसिडिक रह सकता है. pH of an acidic solution is less than 7 and that of a base is greater than 7. अभी जो मैंने आपको बताया था कि pH of an acid is less than 7, pH of a base is greater than 7. Next we have is universal indicator. Universal indicator. What are the colors of the following natural and okay? We know that some natural and synthetic dyes show two different colors in acidic and basic solution, and such dyes are used as acid-base indicators. In the pH scale, the pH of solution varies from 0 to 14 in accordance with strength of acid or base. To show these variations in pH, a universal indicator is used. A universal indicator shows different colors at different values of pH. पहले आपको ये तो पता ही है कि pH स्केल में 0 से लेकर 7 तक की चीज़ें एसिडिक होती है और 7 से लेकर 14 तक की चीज़ें बेसिक होती है. ये तो फिर भी pH स्केल है. अगर आपको एक यूनिवर्सल इंडिकेटर चाहिए कि वो सब चीज़ें टेस्ट कर सके, सब चीज़ें बता सके, तो उसके लिए आपको अलग चीज़ लगती है. वो कलर बेसिस पे हो सकता है. आपका फिनोल्फ्थलीन रहता है, KOH है, NOH है, ये सब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मिक्स्ड मेड बाय मिक्सिंग सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस. यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में. pH of a solution can be determined by means of universal indicator solution or pH paper made from it. However, the most accurate method of measuring pH
is to use an electrical instrument called pH meter. In this method, pH is measured by dipping electrodes into the solution. मतलब इलेक्ट्रिकल मीटर आता है एक, जिसमें आप इलेक्ट्रोड्स डिप करते हो वो सॉल्यूशन के, आप इलेक्ट्रोड्स को अपने सॉल्यूशन में डिप करते हो और फिर बाद में उसको इलेक्ट्रिक मीटर वाले सॉल्यूशन में डिप करते हो, तो उसको आपको पता चलता है कि उसमें पीएच कितना है। आज के लिए बस इतना ही। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में आपका लिटमस भी आता है। लिटमस एक लीचेन करके एक प्लांट रहता है, उसके उसके पेपर से बनता है या उससे वो पेपर बनता है। लिटमस पेपर आप गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर वेरी इजी टू स्टडी। केमिस्ट्री बहुत इजी है स्टडी करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर द मोलैरिटी एंड दैट पार्ट। केमिस्ट्री इज अ टाइप ऑफ मैजिक। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बहुत मजा आता है, बट इफ यू ट्राई टू रीड इट थियोरेटिकली इट्स वेरी बोरिंग। So try to Google stuff, try to watch the fun videos of chemistry. जो fails होते हैं वो भी देखिए, जो आपके success वाले videos रहते हैं वो भी देखिए, because those are very interesting to watch. So till then, take care, stay home, stay safe.